لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب الله العالمين، والصلاة والسلام على أمير المؤمنين وسيدة النساء العالمين سید شباب اہل الجنہ، والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہادین. لعنت اللہ علی دائم غاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے سزاور ہے جس نے کائنات کو خلق کیا ہے. وہ پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ اسْمَهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. وہ گھروں کی تعظیم اور تکریم کرو. وہ گھروں کو میں نے بلند کیا ہے. ان ترفع وَيُذْكَرَهُ، جس گھروں میں ذکر ہی ذکر ہوا کرتا ہے. فِيهَا اسْمُهُ، اللہ کے اسموں کا. يُسَبِّحُ لَهُ، اور اللہ کی تسبیح کی جاتی ہے. فیہا بالغدو والآصال، صبح و شام ان گھروں میں جن گھروں میں میری ہی تسبیح، میرا ہی ذکر، میرے ہی ناموں کا ذکر کیا کرتے ہیں، ان گھروں کی تعظیم و تکریم کرو. میں نے ان گھروں کو بلند مرتبہ قرار دیا ہوں. وہ ایسے گھریں ہیں کہ جس میں رات دن تسبیح و تحلیل تنزیہ ہوتا ہے. ہمیں جاننا چاہیے کہ پروردگار عالم کس کے سلسلے میں یہ آیت نازل کیا ہے. کئی آیتیں ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام کے، اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں نازل کیا ہے پروردگار عالم نے. اس میں یہ بھی ایک آیت ہے جن گھروں کی تعظیم و تکریم کرنے کے لیے واجب قرار دیتا ہے، کیونکہ وہ خود اسے بلند و اعلیٰ ترفع گھر بنایا ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے یا سید الانبیاء، یہ کون سے گھر ہیں؟ تو رسول فرماتے ہیں المساجد بیوت اللہ فی الارض، وہ زمین پہ ایسے گھریں ہیں فی بیوت اللہ فی الارض وہی تضیء اہل السماء، کہ آسمان والوں کو، ملائکہ و فرشتوں کو، آسمان میں جتنے مخلوق رہتی ہیں ان تمام کو یہ زمین پہ یہ گھریں ہیں جس میں تسبیح و تذلیل و ذکر پروردگار کا کیا جاتا ہے. وہ گھروں کو اللہ عرف و اعلیٰ کیا ہے. اہل سنے آسمان والوں کو وہ تضیء اتنی روشن دکھائی دیتے ہیں، کما تضیء جیسا کہ روشن دکھائی دیتے ہیں نجوم اہل الارض، جیسا زمین والوں کو آسمان کے ستارے روشن دکھائی دیتے ہیں، اسی طریقے سے یہ گھریں بھی آسمان والوں کے لیے اس طریقے سے دکھائی دیتے ہیں. پروردگار عالم ان گھروں کو عرف و اعلیٰ کیا ہے. تو پھر رسول خدا سے پوچھا جاتا ہے، انس بن ملک اور بریرہ دونوں راویوں نے رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں؟ تو رسول فرماتے ہیں وہ انبیاء و اوصیاء کے گھر ہیں. پھر انس بن ملک اور بریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کیا وہ گھروں میں علی و فاطمہ کا بھی گھر ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نام من افاضلہات، نام من افاضلہات، یہ ان تمام گھروں سے یہ گھر افضل ہے. علی و فاطمہ کے گھر ہیں ان تمام گھروں سے جس میں تسبیح و تحلیل و تنزیہ کیا جاتا ہے، رات دن خدا کے ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے صبح و شام. ان گھروں سے علی و فاطمہ گھر افضل و اعلیٰ ہے. کون کہتے ہیں؟ رسول. کون رسول؟ بغیر
वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, जो वही के बगैर ज़बान अक़दस को नहीं बोलता, वो रसूल फरमाते हैं। तो फिर पूछा जाता है, या रसूलल्लाह और वाज़ेह करके बताइए, ये घर को परवरदिगार आलम ने इतना अरफा व आला क्यों बनाया है, जो अली और फातिमा के घर हैं। तो रसूल फरमाते हैं, क्योंकि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलिल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा, परवरदिगार ने इन घरों को, इन घर वालों को, ये अहले बैत को से नजासत इतना दूर रखा है जितना दूर करने का हक है। पता चला ये घर वो घर हैं, आम मस्जिदें, दुनिया मुफस्सिरीन लिखते हैं आम मस्जिदें, चंद मुफस्सिरीन लिखते हैं खाना काबा, बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद खुबा, मस्जिद नबवी, ये 4 घरें लिखते हैं चंद मुफस्सिरीन। क्योंकि खाना काबा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगम्बर तामीर किए, उनके बेटे के साथ, इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ। बैतुल मुक़द्दस हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में बिना हुई और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में तकमील हुई। और वैसा ही मस्जिद खुबा मौला कायनात के ज़रिए से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद बनाई, और मस्जिद नबवी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाई। लिहाजा ये घरें हैं समझ के ये राविया मुफस्सिरीन तमाम रसूल से पूछते हैं, तो ये घरें हैं। और अली और फातिमा का घर इनमें कौन से दर्जे का है, तो रसूल फरमाते हैं अली और फातिमा का घर इन तमाम घरों से अफजल वाला है। तो पता चला रसूल जिसे कश्ती कह के हमें कहा है कि जिसकी मोहब्बत वाजिब करार दिए है, जिसको हादी बनाकर परवरदिगार आलम ने भेजा है, ये वो घरें हैं जिनमें रात दिन सुबह शाम तस्बीह और तहलील तंजिया होता है। तो फिर पूछा जाता है, या रसूलल्लाह और वाज़ेह करके बताइए। तो रसूल फरमाते हैं, रहमतुल्लाहि व बरकातहू अलैहिम अहलल बैत, अलैकुम अहलल बैत, रहमतुल्लाहि व बरकातहू अलैकुम अहलल बैत। ये वो घरें हैं, ये वो अहले बैत हैं, ये वो घर वाले हैं जिनके ऊपर परवरदिगार आलम रहमतें और बरकतें नाज़िल करता है। तो हमें जानना चाहिए कि किन घरों का परवरदिगार आलम ताज़ीम और तकरीम करने के लिए कहता है, जिनकी मोहब्बत मवद्दत वाजिब करार देता है। वो घर हैं जो अली और फातिमा के घर हैं, और अली और फातिमा के रिश्तेदारों के घर हैं। आज हम जमा हुए हैं हज़रत मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम, हज़रत मौला कायनात के बड़े भाई हैं। 20 साल का फासला है जनाब अकील और मौला कायनात में। अब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। अकील अलैहिस्सलाम के सिलसिले में जब पूछा जाता है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौला कायनात पूछते हैं, या रसूलल्लाह क्या अकील भी आपके नज़दीक मुहब हैं, आप मोहब्बत करते हैं अकील को भी? तो रसूल खुदा से पूछा जाता है, मौला कायनात पूछते हैं, इन्नका तुहिब्बु अकीला, या रसूलल्लाह अकील को भी आप अकील से भी मोहब्बत करते हैं? तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 3 वजहों से मैं अकील को मोहब्बत करता हूँ। एक वजह यह है कि अकील का किरदार खुद ऐसा बुलंद बाला है कि जिसके सबब से मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। दूसरा वजह यह है कि अकील मेरे अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, उनके ज़रिए से मैं दूसरी वजह से उनको मोहब्बत करता हूँ। और तीसरी वजह यह है कि इन्ना वलदहु मक़तूलन, इनके बेटे मुस्लिम क़त्ल होंगे। क्यों? फ़ी मोहब्बत वलदे का, वो मेरे बेटे हुसैन के मोहब्बत में इनके बेटे मुस्लिम शहीद होंगे। इस वजह से मैं अकील को 3 वजहों से मोहब्बत करता हूँ। सुबहान अल्लाह, क्या मर्तबा है जनाब अकील अलैहिस्सलाम का और मुस्लिम अलैहिस्सलाम का रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। और रसूल फरमाते हैं, मुस्लिम मेरे बेटे के मोहब्बत में दीन को बचाने के लिए मेरे बेटे के सफ़ीर बन के कूफा जाएगा। तो मुस्लिम नहीं, मुस्लिम को परवरदिगार आलम आला दर्जा इनायत करता है, क्योंकि उनके गम में मोमिनीन की आंखें रोया करती हैं, उनके गम में मलाइका रोते रोते सलवात भेजते हैं, और रसूल खुद रोने लगे। ऐसा रोए कि रेश भीग गई, उनकी दाढ़ी भीग गई, और आंसू रेश मुबारक से होती हुई सीने पे आकर सीना पूरा
तरी हो गया। इतना रोए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को याद करते हुए। इस वजह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अकील को 3 वजहों से मोहब्बत करता हूँ। जब जिलहज का महीना आया तो खुतूत पे खुतूत आने लगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, कि कूफे वालों को पता चला कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम काबे को आए हुए हैं, हज करने के लिए आए हुए हैं। तो ख़त लिखने लगे, अरे मौला हुसैन, आपके बगैर हमारा पेशवा रहबर कोई भी नहीं है, हम आपको आने के लिए दावत देते हैं, हमारे यहाँ 1 लाख लोग आपके हाथ पे बैयत करने के लिए तैयार हैं, मौला आप आइए। और ख़तों का तेज़ाद बढ़ते गया और ये भी लिखा गया, मौला अगर आप हमारे रहबरी करने के लिए, पेशवाई करने के लिए नहीं आए तो क़यामत के दिन हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकवा करेंगे कि आप हमारे बुलाने के बावजूद भी नहीं आए, हम बेराह रह गए, बेवाली रह गए, बेवसी रह गए, बेरहबर रह गए, बे पेशवा रह गए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मरतबा शरीकतुल हुसैन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह को बुलाते हैं, काबे से निकल चुके हैं, थोड़ा आगे बुला के मशवरा करते हैं, बहन ज़ैनब, अकीला ज़ैनब, खतूत पर खतूत आ रहे हैं, 12,000 ख़त मेरे हाथ में हैं अब फिलहाल। मुस्लिम अलैहिस्सलाम को मैं कूफा मेरा सफ़ीर बना के भेजना चाहता हूँ, मैं अल्लाह का सफ़ीर हूँ, हुसैन मेरा सफ़ीर। हुसैन कहते हैं मैं अल्लाह का सफ़ीर हूँ, हुसैन का सफ़ीर मुस्लिम बिन अकील है। एक मरतबा जनाब ज़ैनब औलिया मकाम से मशवरा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, करके कहते हैं, अये अकीला ज़ैनब, अये शरीकतुल हुसैन, नाना जब जंगों को जाते थे तो ये अली था जिसके सबब से सब जंगें जीत के वापस आए। आज मेरे साथ 5 अली है बहन ज़ैनब। मैं सोचता हूँ कि मैं करबला को मज़लूमियत से जीतना चाहता हूँ, शुजाअत से नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास जो 5 अली है, 1 अली सब जंगें जीती, आज मेरे पास तो 5 अली है। एक जनाब मुस्लिम बिन अकील, दूसरे हनफिया मौला कायनात के बेटा, तीसरे जनाब सज्जाद मेरे फर्जंद, चौथे हज़रत अब्बास मौला कायनात के बेटे, और 5वें अली अकबर अलैहिस्सलाम। 5 अली मेरे पास है ज़ैनब, मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। एक मरतबा आपस में गुफ्तगू होने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये तय किए कि हनफिया को मदीना रवाना किए, मुस्लिम अलैहिस्सलाम को कूफा सफ़ीर हुसैन बनाकर भेज दिए, और जनाब ज़ैनब से कहते हैं, ज़ैनब अब्बास मेरे हवाले, अली अकबर मेरे हवाले, सज्जाद तेरे हवाले बहन। अज़ादारों, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब ज़ैनब औलिया मकाम से ये कहते थे, जनाब ज़ैनब एक मरतबा रोने लगी, भैया आप जैसा मशवरा लेते हैं उसके ऊपर मैं सर तस्लीम करती हूँ। भैया ये क्या माजरा है, क्या ख़त लिखते हैं लोग। हुसैन फरमाते हैं, मैं जानता हूँ बहन वहाँ क्या होने वाला है, सिर्फ इत्माम हुज्जत के लिए मैं सफ़ीर बनाकर मुस्लिम बिन अकील को भेज रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के लोग लिखे हैं कि 1 लाख लोग बैयत करने के लिए आमादा है। एक मरतबा मुस्लिम अलैहिस्सलाम को बुलाए, कहते हैं, भैया मुस्लिम बताओ मेरे सफ़ीर बन के कूफा जाना चाहते हो। मुस्लिम ने हाथ जोड़ के कहा, मौला आप जैसा कहे वैसा करने के लिए मैं राज़ी हूँ। अरे मुस्लिम कहो, तुम्हारे साथ गवाह के लिए 2 अशख़ास होना ज़रूरी है, मेरा सफ़ीर बन के तुम जा रहे हो, 2 गवाह होना ज़रूरी है, मेरे छोटे से लश्कर में किसे तुम इंतखाब करोगे। एक मरतबा मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने सबके तरफ देखा, देख के सर को झुका के कहा, मौला आका हुसैन, मैं मेरे 2 बच्चे मोहम्मद और इब्राहिम को मेरे गवाह बनाकर ले आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो अकेला जा रहा हूँ, आपके पास तो बीवियाँ हैं मौला, आपके पास तो सैयदजादियाँ हैं मौला, आपके पास तो खातून जन्नत के बेटियाँ हैं, नवासियाँ हैं, पोतियाँ हैं मौला, लिहाजा ये सब लश्कर आपके साथ होना ज़रूरी है। मैं सिर्फ मेरे 2 बेटे मोहम्मद इब्राहिम को लेकर जाने के लिए इरादा करता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मरतबा जाने के लिए कहा, जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम 2 बेटों को लेके
कोफा पहुँचे। पहुँचने के बाद मस्जिद में गए। मस्जिद में लोग इंतज़ार करते थे। दो रिवायतें हैं कि 18,000 बैयत करें या 80,000 बैयत करें, दो रिवायतें हैं। एक मरतबा इमाम हुसैन इस्लाम के सफ़ीर मुस्लिम बिन अकील नमाज मगरिबैन अदा किए। उसके बाद हानी बिन उर्वा सामने आए, आके कहते हैं अये सफ़ीर हुसैन, आइए हमारे घर में मेहमानी रहने के लिए मैं इल्तिजा करता हूँ। मरतबा मुस्लिम अलैहिस्सलाम हानी बिन उर्वा अलैहिस्सलाम के साथ उनके घर को गए। तो पता चला यजीद को, क्या यजीद क्या देख रहा है तू, हुसैन का सफ़ीर कूफा आ गया है, 80,000 या 18,000 लोग उनके हाथ में बैयत कर चुके हैं, तेरा तख्त तहबारा में आ जाएगा, तू क्या देख रहा है। एक मरतबा यजीद मलून ने, इब्न माविया मलून ने इब्न ज़ियाद को, जो बसरा का गवर्नर था, उसे खबर दी कि अरे इब्न ज़ियाद क्या कर रहा है तू, जबकि हुसैन का सफ़ीर मुस्लिम बिन अकील आ चुका है और बैयत हो चुकी है उनके हाथ में मस्जिद कूफा में। एक मरतबा इब्न ज़ियाद ने उमर साद को कहा, अरे उमर साद लश्कर भेज ताकि मुस्लिम अलैहिस्सलाम को शहीद किया जाए। एक मरतबा उमर साद ने इब्न अशस नामी के साथ 1,000 घोड़े और 5 पियादा सिपाही को दे के भेजे। कौन अशस? इब्न अशस, जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ज़हिर दी थी इसकी बहन बिनत अशस, जोधा बिनत अशस, उसका भाई ये मोहम्मद इब्न अशस। ये इब्न अशस 1,000 घोड़े सवार और 500 प्यादा लेके गए। उस वक्त उससे पहले क्या हो चुका कि इब्न ज़ियाद ने हानी अलैहिस्सलाम को घर में सफ़ीर हुसैन है कह के मालूम हो के अखबार करा, खबर दी कि हानी को कैद करके लाया जाए। जब हानी अलैहिस्सलाम को कैद करके ले लाया गया तो मुस्लिम अलैहिस्सलाम हानी का घर छोड़ के कूफे के गलियों में कूचों में निकलना शुरू किया। एक मरतबा गलियों में कूचों में आते हैं, उधर हानी इब्न ज़ियाद के दरबार में गए। इब्न ज़ियाद ने पूछा, हानी मुस्लिम को हवाला कर दो। इब्न हानी ने कहा, मैं हरगिज़ नहीं हवाला करूँगा। तो इब्न ज़ियाद ने उमर साद ने मिलकर जनाब हानी अलैहिस्सलाम के चेहरे पे ऐसे कोड़े मारे कि सूरत फट गया, चेहरा फट गया, खून जारी होने लगा। उसके बाद इब्न ज़ियाद मलून ने हुक्म दिया कि हानी अलैहिस्सलाम को कैद किया जाए। इधर मुस्लिम अलैहिस्सलाम को खबर हुई कि हानी का शहीद हो गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के रोने लगे, गमगीन होने लगे और प्यासे हो गए थे, भूखे हो गए थे। एक मरतबा गलियों में जा रहे थे कि पूरा ऐलान हो चुका था, सफ़ीर हुसैन आ चुका है, कोई भी उसे पनाह दिए तो उसके घर को तबाह व ताराश कर देंगे। तो सबके घरें बंद कर दिए गए थे। ये ज़ईफ़ा का घर का दरवाज़ा खुला था। वहाँ पे जनाब मौला के सफ़ीर मुस्लिम बिन अकील उस देवड़ी पे जाके देखते हैं तो एक ज़ईफ़ा दिखती है, उसका नाम तुआ है। उससे कहते हैं, अरे ज़ईफ़ा, माज़रत के साथ कहता हूँ कि मुझे पानी दे, मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ। तो ज़ईफ़ा ने कहा, ये ऐलान नहीं सुना तुमने, इतनी जुर्रत की कि तुमने गलियों कूचे में फिरते हैं, हालांकि सफ़ीर हुसैन आ चुके हैं, उनको मारने के लिए इब्न ज़ियाद और उमर साद पूरा एहसार बन चुके हैं दुश्मनों का। तो मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम फरमाए, भाई बहुत प्यासा हूँ। एक मरतबा ज़ईफ़ा अंदर गई, पानी लाई, लाके पानी को दिया तो मुस्लिम बिन अलैहिस्सलाम बैठ के पानी पिए। तो ज़ईफ़ा तुआ ने पूछा, अये शख्स, ये बता कि तेरा बैठने का अंदाज तो मेरे बादशाह अली जैसा है। तो मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ज़ईफ़ा सबके दरवाजे बंद है, तेरे दरवाजे क्यों खुला है? तो ज़ईफ़ा ने फरमाया, जब मौला कायनात कूफे में हुकूमत करते थे, इस गली से जाते जाते मेरे पास आए और कहा, अरे ज़ईफ़ा मुझे पानी दे, मैं प्यासा हूँ। वो ज़ईफ़ा ने बादशाह अली, मैंने बादशाह अली को पानी पिलाया। इसी अंदाज से वो मौला कायनात मेरे बादशाह अली भी पानी पिए। आप भी इसी तरीके से बैठ के इसी अंदाज में पानी पी रहे हैं, आप कौन हैं? तो फिर मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, अरे ज़ईफ़ा, तूने दरवाजे को क्यों बंद नहीं किया? तो ज़ईफ़ा कहती है, जब पानी पीने के बाद मेरे बादशाह अली ने फरमाया, अरे ज़ईफ़ा, याद रखना, ज़िलहज के महीने के पहले अशरे के आखिरी दिनों में मेरा भतीजा
यहाँ पर सफ़ीर बन के आएगा, पानी को तरसेगा, दरवाज़ा खुला रखना, उसे पानी देना जैसा मुझे दिया था। इसी वजह से मैं हर साल ज़िलहज के आखिरी दिन, पहले दहे के आखिरी दिनों में दरवाज़ा खुला रखती हूँ ताकि मेरे बादशाह अली का फर्जंद शहजादा भतीजा आए और मेरे यहाँ पानी पी सके। मरतबा जब मुस्लिम बिन अकील इस्लाम फरमाते हैं, अय तुआ, मैं ही सफ़ीर हुसैन हूँ, मैं ही अली का भतीजा हूँ, मैं ही शहजादा हूँ। एक मरतबा तुआ ने मुस्लिम बिन अकील इस्लाम के पाँव पे गिर गई, गिर के, मौला अगर मैं ऊंची आवाज़ से बात की हूँ तो माफ़ कर देना। तो मौला के सफ़ीर मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, अय तुआ, घबराना नहीं, मैं तुझे मेरे नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से रोज़े क़यामत मैं बख्शाऊँगा, तेरी शफ़ाअत कराऊँगा। मरतबा तुआ ने बहुत आजिज़ी के साथ, इनके सारी के साथ हाथ जोड़ के हुसैन के सफ़ीर को अंदर बुलाया। जब मुस्लिम बिन अकील तुआ के घर में गए, एक मरतबा तुआ ने खाना पकाया, खाने का बर्तन सामने रखा तो मुस्लिम अलैहिस्सलाम ने खाना के बर्तन देखा। देखने के बाद उनके दो बेटे मोहम्मद इब्राहिम याद आ गए, आके रोने लगे, अय तुआ बर्तन हटा ले। तुआ पूछती है, अय शहजादे क्यों बर्तन हटाऊँ? क्योंकि मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं। जब हानि को मारा गया, कैद करके ले जाया गया, उसके बाद मार दिया गया, तो मैं उनके घर से बाहर आ चुका हूँ। मेरे बच्चे कहाँ हैं मालूम नहीं है, या कैद हो गए, या कत्ल हो गए, या भूखे प्यासे गलियों कूचों में फिरते हैं, लिहाजा मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक मरतबा ये कहे कि मुस्लिम बिन अकील रात भर इबादत में गुजारे। तुआ जब सुबह होती है तो तुआ पूछती है, या सफ़ीर हुसैन, रात भर आप सोए नहीं? तो मौला के सफ़ीर फरमाते हैं, मुस्लिम बिन अकील फरमाते हैं, अय तुआ, रात को मेरे चचा मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ख्वाब में आके कहते हैं, या मुस्लिमो अलवाह अलवाह, अल्लाह जल अनकरीब है मुस्लिम, तेरे तकलीफ़ ख़त्म हो चुकने वाली है, अब अनकरीब हमारे पास आने वाला है। अय मुस्लिम, आज हम तेरे इस्तकबाल करेंगे। एक मरतबा जब ये बात हो रही थी, तुआ के बेटे ने जाके इब्न ज़ियाद को खबर दे दी कि हमारे सफ़ीर हुसैन हमारे घर में ही हैं। एक मरतबा घर का हिसार किया गया। इब्न अशस ने, मोहम्मद इब्न अशस ने 1000 घोड़े और 500 प्यादे के साथ तुआ के घर को हिसार बन दिया। तो तुआ ने एक मरतबा मुस्लिम बिन अकील ने ये आवाज़ों, यानी घोड़ों के टापों की आवाज़ें और ये झनकारें, जो हथियारों के झनकारे सुनकर एक मरतबा ज़रा को पहना और तलवार हाथ में लेके जाने लगी। तो तुआ आड़ा खड़ी ने रास्ते को रोक दिया, कहती है, अरे शहजादे बाहर नहीं जाना, बाहर से चौतरफ से घेर के मारेंगे, घर में है तो 3 दीवारें आड़ी हैं, एक तरफ से आप मार सकते हैं। एक मरतबा मुस्लिम अलैहिस्सलाम वो 1500 फौज को भी वासिल जहन्नम किया। तो इब्न अशस ने उम्र साद को कहा और इब्न ज़ियाद को कहा, यहाँ पे बनी हाशम का लाड़ लड़ रहा है, हमारे फौजी काम नहीं कर सकते हैं, फौजी तमाम खत्ल हुए, भेज। उसके बाद आए, फिर भेज। एक मरतबा इब्न ज़ियाद ने कहा, क्या माजरा है, इतनी फौज जा रहे हैं? ऐसा नहीं है, बनी हाशम के लाड़ के साथ, बनी हाशम के फ़र्द के साथ अगर लड़ना है तो धोखे से लड़ना चाहिए, नहीं तो पूरे कायनात की फ़ौज उनके लड़ाई में नहीं ठहर सकेगी। एक मरतबा जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील लड़ते रहे तो तुआ के घर में फौजी जाने लगे। तो एक मरतबा मुस्लिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अये लोगो, अये कातलो, अये दुश्मनों, आगाह रहो कि मेरे खून के गीरत को ललकारो नहीं, क्योंकि अगर तुम अंदर आ गए तो तुआ की बेहुरमती होगी, मैं औरतों की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करूँगा। हाय इमाम सज्जाद के, इमाम सज्जाद के साथ कैसा खेमे जलाए गए, उनके औरतों के बाद यानी सरों से चादरें छीने गई और खेमे जलाए गए, 3 दिन भूखों प्यास रह गए। हौसला सज्जाद देखिए। ज़्यादा ये कहना था। एक मरतबा कहते कहते गीरत के मारे जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकल गए। एक मरतबा लोग घेरने लगे, घेर के इधर इब्न अशस ने इब्न ज़ियाद को हुक्म, इब्न ज़ियाद ने इब्न अशस को, उमर साद ने इब्न अशस को हुक्म दिया कि गड्ढा खोदो, वो गड्ढे में घास डाल दो ताकि
मुस्लिम लड़ते लड़ते पीछे जाते जाते वो गड्ढे में गिर जाएंगे। जब गड्ढे में गिर जाएंगे तो तमाम घेर के उनको मार देना। मतलब ऐसा ही हुआ आज़ादारों, जब मुस्लिम इस्लाम लड़ते लड़ते पीछे पीछे गए तो गड्ढे में गिर गए। जब सब ने उनको कैद करके इब्न ज़ियाद के बारगाह में लाया गया। जब इब्न ज़ियाद के बारगाह में लाए तो जनाब मुस्लिम इस्लाम शान और शौकत के साथ, हालांकि इतने मार लगे थे, ज़ख्मी हो चुके थे, भूख को प्यास में मुब्तला हैं, रहने के बावजूद सीना तान के सर को उठा के आंखों शेर जैसी आंखें इब्न ज़ियाद की तरफ देखते हुए अंदर आते हैं। तो ग़ुलाम एक मरतबा देखता है, अज़ादारों यही ग़ुलाम एक महीने के बाद सैयद सज्जाद से पूछता है, अरे सैयद सज्जाद, आप इमाम रहने के बावजूद आपका सर नीचे क्यों है? मुस्लिम तो इमाम नहीं थे, आप इमाम होने के बावजूद आपके आंखें नीचे क्यों हैं? या मुस्लिम इमाम नहीं थे, आप इमाम होने के बावजूद अपने गर्दन को, सीने को झुकाए हुए हैं, आंखों को नीचे करे हैं। एक मरतबा सैयद सज्जाद कहते हैं, अरे ग़ुलाम, मुस्लिम तो एक को तन्हा था, उसके साथ कोई मस्तूरात नहीं थे। मैं इस जब सिर उठाता हूँ तो मेरे सामने मेरे फुफियाँ, मेरे माएँ, मेरी बच्चियाँ बेमकलो चार दिख रहे हैं, कोड़े खाते हुए, ताज़ियाने खाते हुए। इसी वजह से मैं सर को नीचे करता हूँ। एक मरतबा ये वाक़या एक महीने के बाद ग़ुलाम ने पूछा। फिर यहाँ जब मुस्लिम बिन अकील अलैहिस्सलाम को इब्न ज़ियाद के और एक ग़ुलाम ने कहा, अरे मुस्लिम, क्या अमीर को सलाम नहीं करोगे? एक मरतबा ये कहना था। मुस्लिम बिन अकील कहते हैं, वल्लाह वाली अमीरो सवियल हुसैन, सिवाय हुसैन के मेरा अमीर कोई भी नहीं है। एक मरतबा इब्न ज़ियाद कहता है, अमीर कहो या ना कहो कत्ल हो जाओगे। एक मरतबा इधर अमीर का लफ्ज़ हुसैन ने राह करबला सुना, काबे से निकलते हुए सुना, सुन के कहते हैं कि अये मुस्लिम बिन अकील, अये हुसैन के सफ़ीर, मैं भरे दरबार में तुमने इब्न ज़ियाद के दरबार में, दुश्मन के दरबार में मुझे अमीर कहा है। मैं भी क़यामत तक मेरे चाहने वाले से कहूँगा कि तुम्हें अमीर मुस्लिम कहें, मुझे गरीबुल वतन, गरीबुल हुसैन कहें। इधर इसके बाद जनाब मुस्लिम बिन अकील को छत पे ले जाया गया दारुल अमारा के। एक मरतबा जब छत पे ले जाया गया तो मुस्लिम अलैहिस्सलाम सलाम करते हैं, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। एक मरतबा अलैहिस्सलाम या सफ़ीरत हुसैन कहते हैं तो हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम आगे कहते हैं, मौला इस राह में तो कोई अजनबी नहीं है, कोई नहीं है, सिवा हमारा छोटा सा लश्कर है, किससे बातचीत करते हैं, किसको सलाम का जवाब देते हैं? एक मरतबा अब्बास से कहते हैं, मौला हुसैन, अब्बास मेरा भाई दारुल अमारा पे ख़त्ल होने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, सलाम कर रहा है। एक मरतबा अब्बास ने कहा, मौला क्या मैं भी देख सकता हूँ? एक मरतबा हुसैन ने अब्बास के सूरत के सामने दो उंगलियों को रखा। अब्बास ने उन उंगलियों से दरमियान से देखा तो दारुल अमारा के छत पे मुस्लिम बिन अकील को यानी छत पे बंद दिया गया है, लटकाया गया है, जल्लाद खड़ा हुआ है तलवार लेके मुस्लिम बिन अकील को। एक मरतबा हाथ जोड़ के कहते हैं, मौला अब्बास, मौला हुसैन से, मौला मुझे इजाज़त दीजिए जाके मैं मुस्लिम को बचा सकूं। एक मरतबा मैं पहले ही कहा था मेरे अब्बास, वादा करो कि कूफा जाने का इरादा ना करना। मौला मैं कूफा लड़ने नहीं जाऊंगा, मौला मैं वादा किया हूँ, ठीक है मैं लड़ने नहीं जाऊंगा। जब दारुल अमारा का छत ऊंचा है तो मेरे बहन वही मुस्लिम का सर कलम होगा तो ज़मीन पे गिरेगा तो सर फूट जाएगा, तो मैं मेरे आबा में उस सर को पकड़ लूँगा। ये कहना था। हुसैन रोते रोते कहते हैं, अरे अब्बास मुस्लिम लावारिस नहीं है, देख। फिर एक मरतबा अब्बास के चेहरे के सामने दो उंगलियों को मौला हुसैन रखा। अब मौला अब्बास देखते हैं तो कहते हैं, मौला क्या देखूं? तो हुसैन कहते हैं, नीचे देखो अब्बास। हुसैन जब अब्बास नीचे देखते हैं, देख के कहते हैं, मौला एक नकाब पोश बीवी काला बुर्का लिए हुए अपना दामन फैला हुए पुकारती है, मुस्लिम मेरे गोद में आ जा। तो अब्बास से हुसैन कहते हैं, अब्बास तू समझा नहीं, तू पहचाना नहीं, कि मेरी माँ फातिमा ज़हरा मुस्लिम के
سر کو لینے کے لیے بقی کو چھوڑ کے آئی ہوئی ہے۔ عزادارو، ادھر قلم ہونا تھا مسلم بن عقیل کا سر، ادھر حسین نے کمر کو پکڑ کے خیمہ میں جانا چاہا، بیویوں نے راستہ دیا، خیمے میں گئے، جا کے کہتے ہیں اے زینب اولیاء مقام شریکت حسین، مسلم بن عقیل کی بیٹی عاتکہ کو بلاؤ۔ جناب زینب عاتکہ کو لے کے آتی ہیں، عاتکہ کے سر پہ امام نے شفاعت کا ہاتھ پھیرتے ہیں، تو عاتکہ بہت چالاک تھی، مولا کائنات کی نواسی تھی، رقیہ کی بیٹی تھی، مسلم بن عقیل کی بیٹی تھی۔ ایک مرتبہ کہتی ہے مولا حسین یہ ہاتھ شفقت کا تو یتیم بچوں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرے بابا کہیں مارا نہ گیا ہو۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں عاتکہ تیرا بابا مارا گیا، میں کہتا ہوں اے عاتکہ آپ کے سر پہ تو شفقت کا ہاتھ حسین نے پھیرا۔ ہائے رے سکینہ، جب حسین کے لاش کے اوپر گئی تھی تو شب نے بالوں کو کھینچتے ہوئے تماچے مارتے ہوئے سکینہ کو لے گیا اور خیموں کو جلا دیا۔ سکینہ کا کرتا جلتے ہوئے خیموں میں جل گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار اس خلیل رضا کو سامعین سے ذاکرین سے قبول فرما، جو محفل قائم کے مجلس قائم کے ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما، تمام کو نیک توفیق عطا فرما کہ وہ اجتماع کے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ محبان اہل بیت جو اس مجلس کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، جہاں جہاں محبان اہل بیت سب کو تیرے دامن میں رہنا نصیب فرمائی، وبا سے بلا سے سب کو بچا لے معبود۔ ہم تمام کے حج زیارت کو نیکیوں کو قبول فرما، بار بار جانا نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل انک انت السمیع